everyone. I am Ariba Tariq Lutfi and welcome to Sante's weekly broadcast Nazariya, the power of experience. We have to carry on this conversation about experiences versus knowledge, which we have been continuing since a long time now. So let's start this conversation with the leading ophthalmologists and their practice in treating glaucoma and share it with our viewers. So today I would like to introduce a highly esteemed leading ophthalmologist of Pakistan who is well known around the world as well, who needs no introduction as he is the teacher of teachers and has experience of more than 3 decades. I would like to introduce Professor Dr. Mohammad Daud Khan. He is also committed to making a difference in the general health education and cross disability in Pakistan and other developing countries. He is the Executive Vice Chairman of OSP, Research Education and Eye Care Foundation. He is the Vice Chancellor of Khyber Medical University, Peshawar, Pakistan. He is the HOD Ophthalmology of PGMI, Hayatabad Medical Complex, Peshawar. And he is the President of SARC Academy of Ophthalmology as well as advisor to WHO. Since he has so much experience, I don't think so I can make due justice with his introduction. So, Assalamu alaikum, Professor Daud. How are you today? And would you like to say a few words? I'm very well. Thank you very much. It's a great pleasure meeting you all. And it's a great pleasure to be part of this Nazriya. And I'm looking forward for the conversation that will come out of your interview. Thank you so much, Professor Dawood, firstly for coming here and being a part of this session and this project. I'm sure with your knowledge and your experience, many more are going to learn even further than they already have learned throughout their experiences. So, Professor Dawood, let's continue this conversation regarding glaucoma and experience. मेरा जो है वो आपसे फर्स्ट जो सवाल होगा वो मेरा बेसिक क्वेश्चन है which is कि आप एक overview of glaucoma दे दें और साथ में जो है वो हमारे viewers को prevalence of glaucoma बताएं during your practice and in your clinic. आपके clinic में क्या prevalence है glaucoma की? glaucoma पहले glaucoma को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अल्लाह ताला ने एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ है आँख में. आँख के शक्ल और शबात को रखने के लिए और आँख के पर्दों को फीड करने के लिए एक फ्लूइड बनता है आँख में और फिर वो अपना काम करते हैं, शक्ल भी दे देता है आँख को और उसके जो लेयर्स हैं उसको फीड भी कर लेता है. इसका नाम एक्वियस है जी. अब ये एक्वियस पैदा भी होता है स्ट्रक्चर्स में जो आँख में ही हैं और फिर इसके लिए ड्रेनेज अपैरेटस है. उस ड्रेनेज अपैरेटस के थ्रू ये बाहर निकलता है. अब जब ये प्रोडक्शन और ड्रेनेज का जो तनासब है अगर ये डिस्टर्ब हुआ, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो फिर आँख में प्रेशर बढ़ जाता है या घट जाता है. बढ़ जाता है तो ग्लाकोमा कहते हैं और घट जाता है तो हाइपोटनी कहते हैं. दोनों डिजास्टर है. तो वो प्रेशर अगर बहुत जल्दी बढ़ जाता है, कुछ ग्लाकोमा के अक़साम में बहुत जल्दी बढ़ जाता है तो उससे सीवियर पेन हो जाता है. तो वो तो मरीज फौरन पहुंच जाता है डॉक्टर के पास. तो ये दूसरे जो है उसमें प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय करता रहता है आँख के नर्व्स को और मरीज को पता ही नहीं चलता. तो हम इसको साइलेंट थीफ कहते हैं कि ग्लाकोमा इज साइलेंट थीफ. चुपके से चुरा लेता है. जब मरीज बेचारे को पता चलता है तो उसके हाफ विजन या फोर्थ ऑफ विजन इज ऑलरेडी गॉन जब उसको पता चलता है. तो ये ओपन एंगल ग्लाकोमा, क्रॉनिक सिंपल ग्लाकोमा उसे कहते हैं. ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और उसमें मरीज को पता नहीं चलता. आहिस्ता आहिस्ता नज़र घट जाती है. तो ये है ग्लाकोमा की डेफिनेशन. जो एक अर्ज कर दूं, दुनिया में काफ़ी सारे काजेज हैं ब्लाइंडनेस के, लेकिन जो दो बड़े कॉमन काजेज हैं, एक कैटरेक्ट है. जी. तो 51% ऑफ ऑल ब्लाइंडनेस
इज बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट। लेकिन कैटरैक्ट का जो ब्लाइंडनेस है वो फॉर्चुनेटली रिवर्सेबल है, उसकी सर्जरी हो जाती है और फर्स्ट क्लास नजर वापस आ जाती है। जो दूसरा है ग्लाकोमा वाला, वो उसका परसेंटेज ये दुनिया में सेकंड मोस्ट कॉमन काज है। कैटरैक्ट के बाद, कैटरैक्ट के 51% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ ब्लाइंडनेस वो कैटरैक्ट का है। ग्लाकोमा का 8% है जी। लेकिन वो 8% बनता है 7.5 करोड़। कोई छोटा मोटा वो नहीं, 7.5 करोड़ बनता है और ये 2040 तक 12 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 2040 में ये नंबर जो है ये पहुंच जाएगा 12 करोड़ तक। इस वक्त ये 7-7.5 करोड़ है। तो ये नंबर है जो ग्लाकोमा, और ये काज करती है फिर इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, जिसका इलाज, इसमें ऑप्टिक नर्व जो है वो खराब हो जाता है, काम नहीं करता, और वो फिर वो तार कट जाता है जिसके लिए जिसके थ्रू हम कनेक्टेड हैं ब्रेन के साथ, तो वो ब्रेन के साथ वो कट जाता है। मैं एक ये भी अर्ज कर दूं कि हवास खमसा में जो अल्लाह ताला ने हमें 5 हवास दिए हैं, सुनना है, छकना, टच करना है, और देखना है, ये 4 हवास हमें जो दिए हैं, उसमें से 80% जो ब्रेन को इनपुट जाता है इन 5 हवास में से, वो सारा आंख की तरफ से जाता है और इट्स कमिंग फ्रॉम द आई। और जब ये ऑप्टिक नर्व कट जाता है तो वो बेचारा 80% इंफॉर्मेशन जो ब्रेन को जाता है उससे डिप्राइव हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी डिप्रीवेशन है लाइफ में जब ब्लाइंडनेस हो जाए। प्रोफेसर दाऊद, आपने हमें बहुत अच्छा एक तो डिटेल्ड बताया कि ग्लाकोमा क्या होता है, उसकी प्रिवेलेंस क्या होती है, एंड आई एम श्योर आपने इस तरह से बताया है कि बहुत आसानी से लोगों को समझ आएगा कि ये कितना सीरियस जो है वो कंडीशन है और इसको कितनी सीरियसली लेना चाहिए। तो आपने सिंस मेंशन किया है कि ये एक साइलेंट थीफ ऑफ साइट होता है, तो मुझे ये पूछना है कि इसका सिंस लोगों को पता नहीं चलता, तो हाउ इम्पोर्टेंट इज द अर्ली डायग्नोसिस, कि इसका डायग्नोसिस कितना अर्ली होना चाहिए और कितना इम्पोर्टेंट होता है ये लोगों के लिए? ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने पूछा। इसका जो हमारे मुल्क, अपने मुल्क की बात करते हैं, हमें 3 चैलेंजेस हैं बड़े बड़े। एक हम गरीब हैं, पॉवर्टी है, एक हमारी इलिटरेसी है, गांव में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, और तीसरे जो है वो हमारी पॉवर्टी है। पॉवर्टी है जी, अब हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसमें प्राइमरी लेवल भी है, सेकेंडरी लेवल भी है, टर्शरी लेवल भी है, लेकिन उस 3 लेवल को हम इफेक्चुअली चला नहीं रहे हैं। प्राइमरी लेवल हमारा बहुत ही कमजोर है जी। प्राइमरी लेवल जो है वो अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, मरीज के बिल्कुल गांव में है, नजदीक है, लेकिन ये बहुत ही हमारा कमजोर है, ये ऑलमोस्ट है ही नहीं। जी। सेकेंडरी अब जो ग्लोबल तरीकाकार है वो कहता है प्राइमरी में 80% जो कम्युनिटी के नीड्स हैं वो मीट करेंगे प्राइमरी लेवल पे जी। उससे जो बाकी 20% रह गए, 18% सेकेंडरी में हो जाएंगे और 2% टर्शरी में चले जाएंगे। हमारा रिवर्स ऑर्डर है, हमारे 90% सारे मसले जो है वो टर्शरी में जाते हैं, सेकेंडरी में 2-3% जाते हैं, प्राइमरी में कोई जाता नहीं है। तो अब ये मरीज जो गरीब भी है, अनपढ़ भी है और उसको ग्लाकोमा भी है, ये कैसे पहुंच जाए हमें? तो उसको चैलेंजेस हैं सर्विसेज के अवेलेबिलिटी का, अफोर्डेबिलिटी का। वो एक ऐसा सर्विस उसको चाहिए कि जो अवेलेबल हो, जो एक्सेसिबल हो और जो अफोर्डेबल हो। वो उस बेचारे के पास है नहीं, तो उसकी नजर जाती रहती, कहता है बस मैं बूढ़ा हो गया, बस मेरी नजर कमजोर हो रही है। ये नहीं सोचता कि ये मैं जाके देखूं और वहां पे मेरा टेस्ट हो जाएगा। अब इसके लिए दुनिया में कुछ ममालिक में स्क्रीनिंग कंपल्सरी हो गया है कि ये हर 40 साल के बाद हर एक आदमी जाएगा क्लिनिक में और वहाँ प्रेशर चेक करेगा और फंडस से उसका देखा जाएगा और ग्लाकोमा की स्क्रीनिंग होगी कि इस बंदे को स्क्रीनिंग है कि नहीं। वो भी हमारे पास नहीं है।
ट्रेनिंग का निज़ाम भी हमारे पास नहीं है। बेसिक चीजें तो नहीं। इसलिए जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वो डिटेक्शन है, कि जी हम ग्लाकोमा को डिटेक्ट कर दें और हम ग्लाकोमा को फिर डायग्नोज कर दें और फिर ग्लाकोमा को हम इफेक्टिवली ट्रीट कर दें। आई एग्री विद दिस पॉइंट के हमारे पास जो है वो फैसिलिटीज की जो है वो लैकिंग है इन आवर कंट्री स्पेशली। तो जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होगी और सबसे अच्छी लेवल की होगी, वहां पे भी हमारे पास बेसिक नहीं है। तो उससे प्राइमरी और सेकेंडरी तो बिल्कुल भी हमारा इट्स नॉट यूजफुल फॉर द पब्लिक एज वेल। तो आई एम श्योर अगर लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो डायग्नोज कैसे होगा, ये भी बहुत एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। प्रोफेसर दाऊद, मुझे एक बात बताएं कि आप जो है वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो मल्टीपल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट दे डायग्नोज ग्लाकोमा एंड समटाइम्स जो है वो दे अ पेशेंट जस्ट कम्स फॉर अ चेकअप एंड रूटीन चेकअप और फिर वो जो है वो डायग्नोज हो जाता है ग्लाकोमा के लिए और उसको खुद को भी नहीं पता होता है। तो आप मुझे जो है सिंस ये भी बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में जो है वो फैसिलिटीज भी नहीं है, तो ये किस तरह से जो है वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट अपना डायग्नोस्टिक एरर जो है वो रिड्यूस कर सकें जब वो पेशेंट्स को डायग्नोस कर रहे हो, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और ये बड़ा बड़ा जबरदस्त सवाल आप पूछ रहे हैं। मरीज ने हिम्मत की, आपने अवेयरनेस क्रिएट की, मरीज ने हिम्मत की, अब वो आ गया। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर की और जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उससे पूरी तफसीली हिस्ट्री ले लें कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारी और शायद क्या है, तुम दवाएं क्या कर रहे हो, तुम्हारी माँ बाप को काला पानी तो नहीं था, तुम्हारे बहन भाई को काला पानी तो नहीं, ये सारी हिस्ट्री फिर उसको बड़ी इफेक्टिवली एग्जामिन करते हैं। फिर उसको एग्जामिन करने के बाद उसके जो नेसेसरी ग्लाकोमा के टेस्ट हैं वो सारे करते हैं और उसके बाद फिर तजवीज़ कर दें मेडिकेशन कि जी तीन तरीके हैं ग्लाकोमा को टैकल करने के लिए। मेडिकल बड़े अच्छे दवाएं अवेलेबल हैं। नंबर 2 लेजर के साथ काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और तीसरी सर्जरी। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इन तीनों में से फिर मरीज की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखा जाए, मरीज की हिस्ट्री ली जाए, उसके एजुकेशन लेवल दिया। सबसे बड़ा जो मसला है इसमें जब आप दवाई पे डाल दें तो दवाई में कंप्लायंस होता है कि ये मरीज दवाई खरीदेगा और दवाई डालेगा और ये सारी उम्र की दवाई है। तो वो 2-3 महीने तो डाल देता है, उसके बाद फिर भूल जाता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नजर जाती रहती है। जब ये आता है अमेरिका में, इन्होंने सर्वे की है कि ग्लाकोमा का मरीज जब हमारे पास आता है तो 40% लोग दवाई उस दिन डालते हैं जिस दिन ये आते हैं डॉक्टर के पास। 40% ये बाकी नहीं डालते हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? तो भूल जाते हैं, भूल जाते हैं या इग्नोर कर लेते हैं। वो दुनिया में बिजी होते हैं ना, बहुत सी कार्रवाइयाँ होती हैं। तो नंबर 1 ये फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। फिर एम्फसाइज करना पड़ेगा मरीज पे कि ये दवाई ठीक दवाई है, अच्छी दवाई ना दें। अब ऐसी दवाई कभी कभी हम दे देते हैं जिससे अपने मरीज को तकलीफ हो जाती है। और मैं एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक सीनियर कोलीग मेरे पास आए, बहुत सीनियर, बड़े रिस्पेक्टेबल और बड़ा काबिल एक्सरे स्पेशलिस्ट था कि यार मुझे आंखों में कोई तकलीफ है, देख लिया तो वो ग्लाकोमा निकला। अब उसके साथ उसको मैं जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह, लेकिन ये मुझे नहीं पता कि बचपन में इसको एस्मा हुआ था, ये मुझे नहीं था पता। बाकी सारी हिस्ट्री में से ले ली। तो उसको डायग्नोस के बाद मैंने उससे दवाई दे दी। मैंने कहा ये दवाई आप सुबह शाम डालेंगे, 1 हफ्ते के बाद मैं रीचेक करूंगा कि तुम्हारा प्रेशर ठीक हो गया। तो वो अगले दिन आया कि सारी रात में नहीं सो सका। मैंने कहा क्यों? कि वो कहते वो जो दवाई मैंने डाल दी तो मुझ पे अटैक हो गया। बीटा ब्लॉकर्स की दवाई मैंने दे दी और बीटा ब्लॉकर ने उसका कंस्ट्रिक्शन कर दिया पल्मोनरी, और वो बेचारा सारी रात न सो सका।
तो इसलिए इसलिए ये बड़े मोहतात रहना पड़ेगा कि जी बड़ी तफसीली हिस्ट्री लेनी पड़ेगी और फिर अप्रोप्रिएट दवाई देनी पड़ेगी। और फिर ये देखना पड़ेगा कि ये मरीज फॉलो अप भी करता है और ये मरीज दवाई भी डालता है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चनेबल है। कोई कभी फॉलो अप से गायब हो जाता है, वो 2 साल के बाद आ जाता है और तब तक आधा 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 होता है। और कोई दवाई आता है लेकिन उस दिन जिस दिन ये इसकी अपॉइंटमेंट हो। तो ये दोनों चीजें बड़ी एम्फसाइज करने पड़ते हैं कि जो मरीज दवाई डालता भी है। और एक और पॉइंट ऑफ व्यू, कॉजेज ऑफ ग्लाकोमा में हेरिडिटरी बहुत बहुत मसला है। और कुछ लोग मसलन अफ्रीका और जो हमारे पॉपुलेशन है एशिया, इसमें बहुत ज्यादा है। लेकिन हम पाकिस्तान में एक और मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारे आपको एलर्जी बहुत ज्यादा है जी। और उसके लिए हम दवाएं डालते हैं और उस दवाई में स्टेरॉइड भी होते हैं और वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल है फार्मेसिस्ट के साथ। तो वो बच्चे डालते रहते हैं, जवान बच्चे डालते रहते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली दोनों वो उनको कैटरेक्ट भी हो जाता है, उनको ग्लाकोमा भी हो जाता है और वो जवानी में अंध हो जाते हैं। और ये 1-2 मरीज नहीं है, ये बहुत ज्यादा नंबर है। KPK में और बलूचिस्तान में ये एलर्जी बहुत ज्यादा है। तो उसमें हम इतने सारे बच्चे देखते हैं ग्लाकोमा और कैटरेक्ट की वजह से ब्लाइंड होने पर, क्योंकि वो स्टेरॉइड डालते रहते हैं और उससे ग्लाकोमा हो जाता है जवानी में, बचपन में, और वो अंधे हो जाते हैं। तो जब मरीज डिटेक्ट हो जाए, डायग्नोज हो जाए, तो उसके बाद ट्रीटमेंट के साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ये बंदा कंप्लाइंट है, दवाई डालता है। नंबर 2, ये फॉलो अप भी करता है। अगर हमारे पास तो ऐसे लोग भी आते हैं जो 300 मील दूर हैं, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, तुर्किस्तान से आते हैं, ऐसे मरीज में फिर हम सर्जरी को प्रेफर कर लेते हैं कि ये बेचारा तो फॉलो अप कर नहीं सकता, तो इसके 1-2 फॉलो अप हम कर लेंगे, सर्जरी हो जाएगी, उसका प्रेशर ठीक है, ड्रेनेज ठीक है, तो फिर साल में 1 दफा या 3-4 साल के बाद आ जाएगा, तो आंख बच जाएगी। तो ये हमें सीरियस चैलेंजेस हैं कि जो आपने अवेयरनेस क्रिएट की, डिटेक्ट भी हुआ, लेकिन फिर वो दवाई या अफोर्ड नहीं कर सकता है या डालता नहीं है, तो उसको बात समझ नहीं आ रही है, या फिर वो कॉम्प्लिकेशन जो मैंने बता दिया कि वो हमारे जो रेडियोलॉजिस्ट था वो बेचारा सारी रात सो नहीं सका क्योंकि मैंने गलत दवाई दे दी उसको। तो ये सारे चैलेंजेस है ग्लाकोमा के मैनेजमेंट में। और अच्छा, एक और मिस्टेक हम कर लेते हैं। अगर हमने ठीक तरह से एग्जामिन नहीं किया और डायग्नोज सही नहीं किया, लेकिन उसको दवाई दे दे और वो आदमी एजुकेटेड भी है और कंप्लाइंट भी है, तो वो सारी उम्र वो दवाई डालेगा, उसको ग्लाकोमा नहीं है। तो इसलिए हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब ये हमारे पास आया तो हम सारे इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट क्लास कर लें, डायग्नोज कर लें कि ये वाकई ग्लाकोमा है। अदरवाइज सारी उम्र आपने उसको पिनलाइज कर दिया जी, उस बेचारे को ग्लाकोमा नहीं। और ये हमें बहुत मरीज देखता हूँ, उसके दवाई में बंद कर देता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे ग्लाकोमा नहीं है, तुम ये दवाई ना डालो। तो वरना वो सारी उम्र वो सारी उम्र दवाई डालता रहता है। और दवाइयाँ महंगी भी हैं और दवाइयों के सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन भी हैं। हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेसर मुझे एक बात बताएं कि व्हाट इज योर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट और योर थेरेपी जो है वो आप जब डायग्नोज की, एक पेशेंट आता है आपके पास न्यूली डायग्नोज्ड ग्लाकोमा पेशेंट, तो आप उसकी थेरेपी किस तरह स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज योर चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट इन दैट? अरीबा, जो मैं पेशावर शहर में प्रैक्टिस करता हूँ, तो पेशावर शहर के जो मरीज हैं वो यूजुअली एजुकेटेड होते हैं और यूजुअली वो फॉलो पीयू रखते हैं और दवाई समझ जाते हैं और दवाई डालते हैं। तो इसमें तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रेफर करते हैं कि बस जी मेडिकल ट्रीटमेंट ये डाल देते हैं और 3-4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद हम देख लेते हैं वो प्रेशर ठीक है, विजन ठीक है, विजुअल फील ठीक है, तो यह दवाई जारी रखो और 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के बाद तशरीफ ले आओ। जो मसला जो है वो गांव के लोगों का है, जिसका एक्सेस भी बड़ा मुश्किल है हमारी तरफ, वो 300-400 मील से आ जाते हैं, समझ भी नहीं पाते।
फिर दवाई के डालने में भी कंजूस हैं। जी। अब वो बेचारा क्या करे, वो 3-4 महीने से वहां आ नहीं सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर या लेजर करना पड़ता है जी, या सर्जरी। सर्जरी करनी पड़ती है, और उसमें फिर वो आंख बच जाती है। वरना वरना दवाई पे हम छोड़ देते हैं ना, तो वो बेचारा अंधा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। So it depends तो on the ये एग्जैक्टली मरीज के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पे, एजुकेशन स्टेटस पे कितना जिम्मेदार है, कितना क्या आप उसको सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इतनी है कि ये फॉलो अप के लिए आ सकता है, क्या वो इतना एजुकेटेड है कि ये बात समझ ले कि जी दवाई मैं कज़ा नहीं करूँगा, रोज डालूंगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप जहन में रखें और आप कहें कि ये नहीं है, रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेटेड है, फॉलो फॉलो अप भी कर लेगा, तो फिर मेडिसिन इज नंबर 1 चॉइस। जी। लेकिन अगर इसमें कुछ कुछ भी वो हो, फर्क हो, तो फिर या लेजर कर लो और या मैं एक इंटरेस्टिंग किस्सा आपके साथ शेयर करूं। ये मेरे जवानी की बात है, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था, तो एक मोहतरमा हमारे कई बड़ी अच्छी फैमिली वाली थी। वो मरी में छुट्टियां गुजारने गए थे, तो दादी अम्मा को आंख में शदीद दर्द हुआ, तो वो ग्लाकोमा के लिए आ गई। ग्लाकोमा जब बाय द टाइम वो हमारे पास पहुंची थी, उसकी नजर गई थी, लेकिन उसकी सर्जरी हमने कर ली इसलिए कि वो पेन रिलीव हो जाए। दूसरी आंख के लिए दवाई लिख दी। दादी अम्मा फिर चली गई वहां पे इसने दवाई डालना दूसरी आंख में, ठीक आंख में छोड़ दिया। फिर उसी आंख, दूसरी आंख में एंगल क्लोजर ग्लाकोमा हो गया। बाय द टाइम ये हमारे पास वापस आ रही थी, वो दूसरी आंख में भी आंखी थी। तो ये मामला गपशप वाला नहीं है, बहुत सीरियस है। बहुत सीरियस। और वो दादी हमारे दोनों आंखों से अंधी हो गई। This is such a serious matter and I think people need to know कि ये कितना grave और कितनी serious चीज है ग्लाकोमा। लोगों को अभी भी नहीं पता होता, अगर आप जनरल पब्लिक से पूछें तो उनको नहीं समझ आता कि ग्लाकोमा कितना सिवियर है। प्रोफेसर एक और चीज मुझे पूछनी है कि कोई ड्रॉबैक्स हैं लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिकेशन के ग्लाकोमा में? अगर ड्रग ने रिएक्ट नहीं किया और पेशेंट ने टॉलरेट किया और वो महीना 2 ठीक डाल रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं, तो मेडिकल ट्रीटमेंट, और बंदा रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेटेड है, समझता है कॉन्सिक्वेंसेस को, और वो कंप्लायंस उसकी बड़ी अच्छी है, तो ग्लोबली स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के फिर बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं। वो मरीज जो है वो, और मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि बहुत से मेरे मरीज जो है वो आखिरी उम्र तक उनको नज़र आता है, और वो दवाई डालते रहते हैं। तो कभी कोई 10 साल, 12 साल, 20 साल तक मैंने देखे हैं कि वो दवाई डालते रहते हैं और नज़र उनकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बच जाती है। सिंस मैंने आपसे इतनी डिटेल्ड जो है वो ग्लाकोमा के बारे में बात करी है, तो अब आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी ग्लाकोमा में किस तरह का होगा? कोई लेटेस्ट एडवांसमेंट आपको नजर आती है इन फ्यूचर ऑफ ग्लाकोमा प्रैक्टिस? इस ग्लाकोमा के हम जो स्टोरी पढ़ लेते हैं ना पिछले 300-400 साल के, तो बहुत बहुत लर्निंग हो गई है। आगे भी यानी इस वक्त अल्लाह ताला ने साइंटिफिक नॉलेज में ये हमें नॉलेज नहीं दी है कि ये ऑप्टिक नर्व ने काम छोड़ दिया, तो अब ऑप्टिक नर्व को कैसे रिजुविनेट कर सकते हैं। फ्यूचर में पॉसिबल है, फ्यूचर में पॉसिबल है। अल्लाह ताला ने किसी को ये अकल दे दी कि हाँ, इस रग ने ये काम छोड़ दिया, ये दवाएं इस्तेमाल करके ये रग फिर काम शुरू कर देगा, तो रिकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बाकी आंख में तो कोई मसला नहीं है ना, सिर्फ ऑप्टिक नर्व ने काम छोड़ दिया है। जी। हाँ, वो दिमाग के साथ उसकी कनेक्शन कट गई है। तो अगर ऑप्टिक नर्व फिर जिंदा हो गया और उसने काम शुरू कर दिया, तो आंख, तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। अगर अपने बंदों को और भी सिखा दिया, तो हम प्रिवेंट भी कर सकेंगे और हम ट्रीट भी कर सकेंगे बड़ी मोर एफिशिएंटली एंड मोर इफेक्टिवली।
अभी भी पहले से बहुत बेहतरी है, बहुत बेहतरी है। जी मसलन ये जो जिस जमाने की मैं ये दादी अम्मा की बात कर रहा था ना, जिस जमाने की उसको एंगल क्लोजर हो गया और वो दोनों आंखों से बेचारी अंधी हो गई, अब वो जमाना नहीं है। अब तो माशाल्लाह बहुत किस्म की दवाई हैं, प्रेशर हमारे पास 50 आ जाता है, एक इंट्रावीनस ड्रिप लगा देते हैं जी और 2 घंटे में प्रेशर 20 हो जाता है, 1-1.5 घंटे में प्रेशर 20 हो जाता है। उसके बाद फिर फैसला करते हैं कि जी सर्जरी होगी, मेडिकल होगा, जी वगैरह। तो आज काफी काफी हद तक काबू में है, लेकिन इससे बेहतरी आ सकती है। बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचर में कि फ्यूचर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से और भी आसानियां इंशाल्लाह हो जाएंगी और so इल्म के दरवाजे और भी खुल जाएंगे। और so I think the glaucoma, मतलब everybody agrees कि glaucoma का फ्यूचर और ऑफ्थेल्मोलॉजी का बेसिकली फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है और इंशाल्लाह और डेवलपमेंट्स आएंगी। लास्ट मेरा जो है वो आपसे क्वेश्चन समझे या आपकी एक मुझे एडवाइस भी बताइएगा आपके आपके पास कोई ऐसी एडवाइस है जो आप यंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को देना चाहते हैं जो कि आपको देख रहे हैं, who look up to you, और वो चाहते हैं कि वो इन फ्यूचर जो है वो आपके लेवल तक रीच करना चाहें, विच इज वेरी डिफिकल्ट आई एम श्योर, बट वो उनकी एडवाइस आप उनको देना चाहें जो उनके लिए बहुत यूजफुल हो। अरीबा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपने किया। देखिए, विजन होनी चाहिए। ये जो हमारे जवान हैं इनके एक विजन होनी चाहिए, और वो विजन ये है कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनली, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेल्थ की है और कम्युनिटी के हेल्थ में बेहतरी लाने के लिए। तो उस कम्युनिटी की बेहतरी लाने के लिए 4 चीज़ होती हैं: नॉलेज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट। ये 4 चीज़ होती हैं। फिर एक प्राइमरी का, सेकेंडरी का, टर्शरी का। तो हम जो स्ट्रगल करेंगे ना, वो ये करेंगे कि जी नंबर 1 इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रिसोर्सेज की, ताकि जो गांव में बैठे हुए हैं ना, उसके प्राइमरी लेवल पे भी ग्लाइकोमा डायग्नोज भी हो सकता है और ट्रीट भी हो सकता है। सेकेंडरी लेवल पे डायग्नोज भी हो सकता है, ट्रीट भी हो सकता है। हाँ, अगर बड़ी एडवांस किस्म की सर्जरी, लेजर इंटरवेंशन वो चाहते हैं, उसके लिए टर्शियरी सेंटर आ जाता है तो ठीक है। लेकिन जो कॉमन मेडिकेशन है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज की हो, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, उसमें टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल हो, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी हो, और उसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम्स हो। जो सबसे बड़ा जो चैलेंज पाकिस्तान के है, अब आप अपने इदारे की तरफ देखें। अगर आपके इदारे से आप अपना मैनेजमेंट स्किल्स निकाल लें तो उस इदारे का क्या बनेगा? नथिंग, डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना, हो ही नहीं पाएगा, कोलैप्स। तो पाकिस्तानी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या मेरे 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 कोलीग्स को ये मैसेज है कि नंबर 1 विजन अपना पूरे पाकिस्तान पर रखो। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरे पाकिस्तान हमारी जिम्मेवारी है। हमें गवर्नमेंट के साथ हर वक्त एडवोकेसी करनी पड़ेगी, आपके साथ, इंडस्ट्री के साथ एडवोकेसी कि भाई ये ड्रग्स जो है ये हमें चाहिए, इस पर रिसर्च कर दो, इसको अवेलेबल कर दो, इसका कास्ट कम कर दो। ये एडवोकेसी करेंगे, फिर ये ड्रग्स अवेलेबल हों, एक्सेसिबल हों और अफोर्डेबल हों, और हम ये देखें कि जी कोई भी मरीज इसलिए अंदर नहीं हुआ कि उसको एक्सेस नहीं हुआ या वो अफोर्ड ना कर सका। अगर कोई मरीज अंदर हो रहा है और उसके पास ड्रग्स के लिए पैसे नहीं है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी तरीके से मैं उसके लिए दवाएं मुहैया कर दूं। जी। तो ये मैसेज है मेरे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के लिए कि ये हमारी जिम्मेवारी है आंखों की हिफाजत, कि हम जो विजन है वो बहुत कीमती चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ है। 80% जो इनपुट है ब्रेन को वो आंखों से है, वो आंखों से है। तो अगर ये ऑप्टिक नर्व खराब हो जाए तो वो 80% इंफॉर्मेशन से वो बंदा डिप्राइव हो जाता है, और बहुत बड़ी डिप्रीवेशन है। तो अल्लाह किसी को ना देखा है।
प्रोफेसर आपने बिल्कुल सही बात बोली कि अगर एक्सेसिबिलिटी ही नहीं होगी पेशेंट्स के पास तो काम वो कैसे चलेगा, मतलब हमारी डिजीज जो है वो और प्रिवेलेंट होती जाएगी। एंड आई थिंक के ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो यंग आपको देख रहे हैं, दे शुड वर्क फॉर द कंट्री एंड नॉट जस्ट देमसेल्व्स। वो सिर्फ सेल्फिशली काम नहीं करें, वो सेल्फलेसली काम करें, अपनी सोसाइटी के लिए काम करें, और कोई भी जो भी चीजें जो है वो लैकिंग है हमारी सोसाइटी में उसके लिए वर्क करें, रिसर्च पे वर्क करें। योर एडवाइस इज आई एम श्योर वेरी इम्पोर्टेंट, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच प्रोफेसर दाऊद for your time and sharing your experience. It was an immense pleasure for me and for Sante as well कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे प्रोजेक्ट में आपने अपना एक्सपीरियंस डिस्कस किया और लोगों तक ये बात पहुंचाई। So you have any few words to say at the end so that we can close this session? आखिर जो बात मैं करना चाहता हूँ वो एक मैसेज आज के इस महफिल के थ्रू में हुकूमत को भेजना चाहता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान को, कि ये आपके पास ह्यूमन रिसोर्स भी है माशाल्लाह। 1980 में हमारे पास 80 ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थे, 10 करोड़ हमारी आबादी थी। 1980 में हमारे पास सिर्फ 80 ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट थे, 10 करोड़। अब माशाल्लाह हम 4,000 ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से ज़्यादा हैं। तो हुकूमत के पास माशाल्लाह अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, ह्यूमन रिसोर्स भी है। अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एफिशिएंट कर दे प्राइमरी लेवल को, और एफिशिएंट कर दे सेकेंडरी लेवल और एफिशिएंट लेवल को। अब ये सारा फोकस टर्शरी पे है जी, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। मैक्सिमम सर्विसेज जो है वो डाउनग्रेड वो नीचे लाने चाहिए प्राइमरी लेवल तक। स्कूल सर्विस नहीं है, बच्चे हमारे पास जवान आ जाते हैं, लड़कियां आ जाती हैं 20 साल की, कहते हैं मैंने एक कान बंद कर दिया तो पता चले कि दूसरे आंख से मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब वो उस बेचारी को बचपन से ये था, लेकिन किसी ने उसकी आंख का टेस्ट नहीं की। अगर स्कूल सर्विस है तो जो तरीकाकार डेवलपिंग कंट्रीज में है, वो कहते हैं बच्चा पैदा होता है तो नर्स चली जाती है, वो देख लेते हैं आंख भी ठीक है, नाक भी ठीक है, कान भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, जीपी को खत लिख देते हैं कि बच्चा पैदा हुआ है। सारी चीज 5वीं में ये फिर स्कूल में दाखिल होता है, सारे टेस्ट उसके हो जाते हैं और ये पता है कान भी नाक भी ठीक है, कान भी ठीक है, वो रिपोर्ट भी चला जाता है। फिर ये 5वीं पास करके 10वीं में जाता है, फिर सारे टेस्ट हो जाते हैं। किधर है ये सर्विस हमारा? ये नहीं है। तो ये आपके थ्रू आज मैं ये मैसेज डालना कि ये हमें ये इस तरह के सिस्टम चाहिए और ये मस्ट है और लोगों का हक है। ये लोगों का हक है कि इस तरह के सर्विस उनको मिल जाए। गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे पास सर्विसेज बेसिक हैं, ये प्रोवाइड होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में ये बेसिक चीजें ही प्रोवाइडेड नहीं है तो किस तरह, मतलब गवर्नमेंट इज नॉट रियली हेल्पिंग। सो वी नीड टू spread your message across this platform. Let's just end this session. Thank you so much for joining me. I would like to end this session with a quote of Napoleon Hill, that one of the most valuable things any person can learn is the art of using the knowledge and experience of others. And आपका जो experience है उससे जो है वो लोग learn करेंगे and they can use that as their knowledge and for future. So thank you so much, Professor Dawood. It has been such an immense pleasure for me for joining here. Thank you so much. Okay. Thank you, Ariba. It was such a nice experience discussing this issue with you. Thank you very much. God bless you.